Welcoming on today's online session for statistics, standard 11, chapter number 4, measure of dispersion. Till now we have learned about range deviation, caudal deviation, mean deviation. The last topic is about standard deviation. Okay. This is considered as the best measure of dispersion, the standard deviation. Okay. So straightforward will be solving the sums. Where if supposedly only x is given, so 10, 11, 12, 13 and 14 x is given. Okay. There are three methods, three ways of solving the sums if only x is given. The first of all, I'll find the mean of that. 10, 20, 30, 40, 50, 54, 54 plus 3, 57, 50, 59, 60. 60. X bar equal to sigma xi upon n, that is 60 upon 5, your x bar equal to 12. Then what we will do, we have to find the deviation, xi minus x bar. What we will do, we have to find the deviation. 10 minus 12 is minus 2, 11 minus 12 minus 1, 12 minus 12 0, 13 minus 12 1, 14 minus 12 2. Then xi minus x bar का स्क्वायर, ठीक है, ये मॉड्यूलस नहीं ब्रैकेट है, स्क्वायर. सो क्या आएगा 41014 टोटल 10. सो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर होल अपॉन n अंडर रूट 10 अपॉन n is of 5 अंडर रूट 2 का रूट 1.41. So s equal to 1.41. अगर मुझे बोलते हैं फाइंड करो कोएफिशिएंट, उसकी फॉर्मूला s अपॉन x बार, that is 1.41 divided by 12 divided by 12, 0.12. क्या क्या पहले मैंने x बार फाइंड किया, x माइनस x बार किया, अब साइन माइनस भी आ सकती है पॉसिबल, स्क्वायर किया, प्लस क्या गॉट सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट के अंदर आई गॉट स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. एक और तरीका, इसी के अंदर एक और तरीका. ओके. di इक्वल टू xi माइनस a, एज्यूम कर लेता हूं सपोजिटली 10, एज्यूम करता हूं सपोजिटली 10. सो 10 minus 10 is 0, 11 minus 10 is 1, 12 minus 10 2, 13 minus 10 3, 14 minus 10 4. Total of it is 10. Okay. Then di का square 0, 1, 4, 9, 16, total 25, 30. इस केस में that is for shortcut method. S equal to under root sigma di square upon n minus sigma di upon n whole square is equal to under root 30 upon 5 minus 10 upon 5 का square. So 30 upon 5 is 6, 10 minus 5 is 10 upon 5 is 2, 2 का square is 4, under root 2 is equal to 1.4. You can see दोनों से स्ट्रेट है. एक और मेथड है, दैट इज xi का सीधा स्क्वायर करना है, xi का सीधा स्क्वायर करना है. 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 एंड 14 का 196. इसको प्लस कर लेते हैं. 100 plus 121 plus 144 plus 169 plus 196, 730. Total is 730. S equal to under root sigma xi square upon n minus x bar का whole square. Under root sigma xi square is 730, n is 5. x bar कितना है 12. 12 का स्क्वायर. यह आया 146 minus 144, that is root 2. S का आंसर आ गया मेरा 1.4. तो आप कोई भी फॉर्मूला में अप्लाई कर ले, you will get the same answer.
डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं, ये दोनों डायरेक्ट मेथड है, ये मेरा शॉर्टकट मेथड है। अब एक्सरसाइज दिया, कोई मेथड अप्लाई करिए, यू गेट द सेम रिजल्ट। ओके, कोएफिशिएंट की तो आपके पास वही सेम एक ही फॉर्मूला अवेलेबल है। अगर आपको XI/FI दिया है, अगर आपको XI/FI दिया है, सपोज XI के नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, पहले FI/XI करना पड़ेगा मीन फाइंड करने के लिए। So 20, 33, 48, 65 and 84, ये 20 और ये आता है 250। x bar equal to sigma FI/XI upon n, 250 upon 20 that is 12.5। x bar आ गया 12.5। इसमें अगर मुझे करना है XI माइनस x bar वाला, XI माइनस x bar वाला, 10 minus 12.5 is minus 2.5. Okay. 11 minus 12.5 is minus 1.5. Minus 0.5, 0.5 and 1.5. Okay. इसका स्क्वायर कर देता हूँ। XI minus x bar का स्क्वायर 6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25। इसको विद फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 6.25 into 2 that is 12.5। 6.25 into 2 that is 12.5। Then 2.25 into 3, 2.25 into 3, 6.75। 0.25 into 4 that is 1। 0.25 into 5 that is 1.25। 2.25 into 6, 13.5। प्लस कर लेते हैं 12, 18, 19, 20, 33, 33.5.5, 34, 35। This is 35। S की फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा FI XI माइनस x bar का स्क्वायर होल अपॉन n, अंडर रूट 35 अपॉन n is 20, अंडर रूट 1.75 का रूट 1.75 का रूट 1.32। S का आंसर आ गया 1.32। एक मेथड ये हुई, एक मेथड ये हुई। देखिए सेकेंड मेथड FI/XI स्क्वायर, सेकेंड मेथड FI/XI स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये वाला, ये बाद में करता हूं, ये वाला कर लिया। देखो अब ये वाला करता हूं, FI/XI स्क्वायर वाला। FI/XI स्क्वायर, FI/XI into XI, I'll get FI/XI स्क्वायर। FI/XI होल स्क्वायर नहीं है, only FI/XI स्क्वायर है। So 20 into 10 that is 200। 33 cancel it। 20 into 10 m plus 33 into 11 m plus 48 into 12 m plus 65 into 13 m plus and 84 into 14 m plus MRC 3160। Total is 3160। 200, 363, 576, 845, 1176। इस केस में फॉर्मूला S इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा FI/XI स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर इक्वल टू 3160 अपॉन 20 माइनस x बार कितना था इसका 12.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3160 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 158 अंडर रूट 158 माइनस 12.5 का स्क्वायर 156.25 so under root 1.75
So answer is same 1.32. Answer is same 1.32. Okay. Then एक ये मेथड हो गई. Then FIDI वाला करता हूँ. FI शॉर्टकट मेथड FIDI वाला करता हूँ. मतलब ये वाला. Okay. So di equal to xi minus a. एज्यूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 सेकेंड 10 एज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है. So पहला 0, then 1, then 2, then 3, then 4 हो जाएगा. हर एक सेकेंड माइनस किया. फिर कर लेता हूँ FIDI. FI into di. 0 into 2 is 0. 3 1s are 3. 2 4s are 4 2s are 8. 5 3s are 15. 6 4s are 24. टोटल कर लेते हैं. 24 plus 15 39. 39 50. ओके. फिर करना है FIDI का स्क्वायर. FIDI into di 0 3 16 45 and 96. प्लस कर लेते हैं. 96 90 plus 4 130 140 146 151 157 160 S equal to under root sigma FIDI square upon n minus sigma FIDI upon n whole square is equal to 160 upon 20 minus 50 upon 20 का square is equal to 8 minus 50 upon 20 that is 2.5. 2.5 का square मतलब 6.25 under root 1.75 1.32. आप देख सकते हो हर एक मेथड से मेरे आंसर सेम ही आए हुए हैं. ईच एंड एवरी मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया. द आंसर इज द सेम. अगर आप फाइंड करना आपको कोएफिशिएंट उसकी तो फॉर्मूला सेम ही है. S upon x bar that is 1.32 upon x bar is 12.5. 1.32 divided by 12.5 0.10511 0.1. I hope so it is very much clear कैसे हमें सॉल्व यहाँ पे करना है. बहुत ही सिंपल है. ओके. आप इजीली सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो. ऐसा ही है. कोई इतना कॉम्प्लिकेट तो यहाँ पे है नहीं. ओके. आप उसको इजीली सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो. बहुत ही सिंपल यहाँ पे है. ओनली एक्स आई दिया है. पहले हमने निकाला उसका एक्स बार. ओके. एक्स बार निकाल लेने के बाद हमने पहली मेथड की एक्स आई माइनस एक्स बार. हर एक नंबर एक्स आई में से मैंने एक्स बार को माइनस किया. फिर उसके बाद में स्क्वायर किया. देन पहली वाली फॉर्मूला अप्लाई किया. एच डी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन. सेकेंड मेथड मैंने अप्लाई किया. उसके लिए डी आई एज्यूम किया एक्स आई माइनस ए. फिर डी आई का स्क्वायर किया. फिर ये रहा एस इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर अप्लाई किया. वैल्यूज पुट अप करना है. दैट्स इट. यू विल गेट द सेम आंसर. थर्ड वाले के लिए एक्स आई स्क्वायर किया. एक्स आई के नंबर जो दिया उसका स्क्वायर कर लिया मैंने यहाँ पे. उसके बाद थर्ड फॉर्मूला जो अप्लाई की ये रही एस इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. तीनों तीन से मेरे एस के आंसर सेम आए. कोएफिशिएंट फाइंड किया. फिर बीच में एस अपॉन एक्स बार है. ठीक है. ये था ओनली एक्स आई वाला. ये है मेरा विथ फ्रीक्वेंसी वाला. एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है. पहले एफ एक्स आई किया. इससे मैंने एक्स बार फाइंड किया. फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया एक्स आई माइनस एक्स बार. एक्स आई के नंबर को मैंने एक्स बार से माइनस किया. माइनस करने के बाद आपके जो भी नंबर्स है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया. उसको फिर मैंने मल्टीप्लाई किया विथ फ्रीक्वेंसी के साथ. तो मुझे मिला गया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 135. पहली फॉर्मूला अप्लाई की सिग्मा एफ आई अंडर रूट सिग्मा एफ आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन. आई गॉट द आंसर 1.32. उसके बाद मैंने एफ आई एक्स आई स्क्वायर कर लिया. एफ आई एक्स आई को एक्स आई के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया एफ आई एक्स आई स्क्वायर. जैसे मुझे मिल गया एफ आई एक्स आई स्क्वायर मैंने पुटअप किया सेकेंड फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. वैल्यूज पुटअप किया. अगेन आई गॉट द सेम आंसर. देन शॉर्टकट मेथड अप्लाई की. मैंने डी आई किया. मैंने एज्यूम किया यहाँ पर 10 को. उसको लिया 0. नीचे 11 माइनस 10 1 12 माइनस 10 2 13 माइनस 10 3 14 माइनस 10 4. फिर एफ आई डी आई किया. फिर एफ आई डी आई स्क्वायर किया. फॉर्मूला एस इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर. एफ आई डी आई स्क्वायर 160 है.
अपॉन 20 माइनस सिग्मा एफ आई डी आई 50 है, 50 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, 160/20 मतलब कि 8 और 50/20 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो 2.5 का स्क्वायर 6.25, 160/20 88 माइनस 6.25 1.75, इसका आंसर 1.32। तीन से मेरा आंसर सेम आए। देन आई फाइंड द कोएफिशिएंट एस अपॉन एक्स बार 1.32 अपॉन 12.5 0.11। हमने ओनली एक्सरसाइज देखा, हमने एक्सरसाइज एफ आई वाला देखा। अब देखते हैं हम लोग क्लासेस वाला। ओके, क्लास दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50। फ्रीक्वेंसी दिया और सपोज 2 3 4 5 6। पहले निकालना है मुझे मेरी वैल्यू 5 15 25 35 एंड 45। अगर डायरेक्ट मेथड करते हैं, अगर डायरेक्ट पहले डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, एफ आई एक्स आई 10 45 100 175 and 270, that is 600. डायरेक्ट के अंदर x y इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन n इक्वल टू 600 अपॉन 20। तो x y का आंसर आया 30 मेरा। ठीक है, इसमें करना है एफ आई एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई कर देना है 5 इंटू 10 n प्लस 15 इंटू 45 n प्लस 25 into 100 m plus f x square, 35 into 175 m plus 45 into 270 m plus MRC 21,500 नंबर लिखने हैं मुझे 50 675 2500 6125 12150। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। S इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21,500 अपॉन 20 माइनस एफ आई एक्स आई मतलब 30 का स्क्वायर अंडर रूट 21500 डिवाइडेड बाय 20 1075 minus 900, that is under root 175. So 175 का root, that is 13.228, 13.23। या आपका S डायरेक्ट से अगर शॉर्ट कट करना है तो डी आई करना पड़ेगा एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। आप मेरी वैल्यू से एज्यूम कर लो, सपोज इट इज 0, इसको आपने एज्यूम कर लिया। ऊपर जाए तो -1 -2, क्लास लाइन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आए तो 1 and 2, फिर करना है एफ आई डी है 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 0 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, टोटल आ गया 10। ओके, फिर करना है आपका एफ आई डी आई स्क्वायर 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 0 5 and 24 प्लस कर देते हैं 24 plus 5 29, 29 plus 3 32, 32 plus 8 40। ओके, सो एस पहले इसमें भी मीन फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं तो सेम आता कि नहीं आता। एफ आई डी आई अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी, एज्यूम किया था 25, एफ आई डी आई है 10, ये है 20, क्लास में 10 20, 10 1 सा 10 2 सा 2 1 सा 2 5 सा, एक्स बार का आंसर मेरा टैली हो गया 30 आ गया, सेम आ गया मेरा एक्स बार का आंसर। अब एस की बारी है, एस इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी रूट के बाहर क्लासेस दिया जा स्क्वायर एफ आई डी आई स्क्वायर मतलब 40 अपॉन 20 माइनस 10 अपॉन 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 अंडर रूट 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25
अंडर रूट 1.75, इसका आंसर आता है 1.323 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 13.23। आ गया मेरे एस का आंसर। जैसे मुझे एस का आंसर अवेलेबल हो गया, वी गॉट टू फाइंड द कोएफिशिएंट इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार। 13.23 upon x bar is my 30. 13.23 divided by 30, 0.44. ओके, बहुत ही सिंपल वाला सम यहाँ पे है, आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। ऐसा ही यहाँ पे सम यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कैलकुलेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एज यू कैन से। अब लेकिन प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो आपके लिए काफी सिंप्लीफाई यहाँ पे हो जाएगा। क्लासेस दिया है तो इस तरीके से आपको सम को यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है। क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है, मेरी वैल्यू निकालो, एफ आई एक्सरसाइज करो, फिर एफ आई एक्सरसाइज को एक्सरसाइज के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एफ आई एक्सरसाइज स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई की, डायरेक्ट मेथड मैंने अप्लाई की, एस इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्सरसाइज स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्सरसाइज अपॉन एन होल स्क्वायर, बाहर रखना है स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ध्यान इसमें रहे प्लेसमेंट करने पे। ओके, देन शॉर्टकट के लिए मैंने डी आई एज्यूम किया, एक्स आई माइनस सी अपॉन सी, सेंटर पे 25 को 0 ले लिया मैंने एक्स आई में से, ऊपर -1 माइनस नीचे 1 2, देन एफ आई डी आई किया, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किया, देन एफ आई डी आई स्क्वायर किया, एफ आई डी आई इंटू डी आई किया तो एफ आई डी आई स्क्वायर मिला। ओके, इसको प्लस किया मैंने यहाँ पे, आई गॉट 40। शॉर्टकट फॉर्मूला में अप्लाई की, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई बाय सी बाहर। पूरे रूट को सॉल्व करने के बाद लास्ट में मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया। दोनों से एज यू कैन सी आंसर मेरा सेम यहाँ पे है। देन फाइंड द कोएफिशिएंट एस अपॉन एक्स बार फाइंड कर लिया मैंने। ओके, so now it is very much clear with you how to find the standard deviation, how to find the coefficient if only x is given, if xi fi is given and if even classes are given। क्लास के अंदर सेम होती है, आपको एग्जाम में मेंशन तो नहीं किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, आपको शॉर्टकट मेथड से करना है या डायरेक्ट से करना है। इफ मेंशन नहीं किया है, करते तो नहीं है, फिर भी अगर मेंशन नहीं किया है तो फिर मैंने आपको तीनों मेथड समझा ही दिया कैसे सॉल्व पे करना है। लेकिन अगर नहीं किया तो आई विल ऑलवेज प्रेफर टू गो फॉर शॉर्टकट मेथड, जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपके नंबर्स भी छोटे हो जाते हैं इसमें, तो आप जल्दी उसको सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो। आई एम अटैचिंग द वीडियो अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशंस एंड द एक्सरसाइज 4.4। ओके, सो आई होप कि आप ये सम जो मैंने बोर्ड पे किया वो आप करोगे सॉल्व वापस से एक बार, अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशंस भी करोगे, साथ में एक्सरसाइज भी आप सॉल्व यहाँ पे कर दोगे। With this, I conclude my lecture for today. Okay, in the very next lecture, I will be dealing with coefficient of variation. The formula for it is s upon x bar into 100. Even I got to deal with combined standard deviation. बस दो टॉपिक बचे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, then I will complete my particular chapter. Okay, exercise I will be helping you out in solving the sums for exercise even. Okay, thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe, and keep learning. Thank you all once again. Have a nice day.